فی کا ترجمہ کیا ہے؟ فی یہ حروف جارہ میں سے ہے اور اس کا ترجمہ ہم میں سے کرتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ میں. اس طرح یہاں پہ میں ہے. اور قلبہ اس کے دل، کہ پہلے ہم نے ربہ، بیتہ، رسولہ، یہ ترجمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ اس کا، اس کی، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو جب بھی یہ جو حروف ہیں یہ اس سے پہلے آتے ہیں کسی محمد ایان، پے اٹینشن بیٹے، پے اٹینشن. آپ لوگ اپنا مائک اگر ان میوٹ کریں گے تو پھر میں سب کے لیے اس مائک جو ہے میوٹ کر دوں گا سب کے. بلا ضرورت اس طریقے کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اوکے، میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو لفظ ہیں جس طرح ربہ، قلبہ وغیرہ کے جو الفاظ ہوتے تھے، یہ اس سے پہلے فی کا لفظ آتا تھا، یا ان میں سے کوئی لفظ آ جائے، حرف آ جائے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے میننگ میں کوئی چینجنگ نہیں لاتا، بلکہ یہ کیا کرتا ہے؟ صرف یہ جو ہو ساؤنڈ تھی اس ہو کی ساؤنڈ کو ہی میں چینج کرتا ہے، بس. اس کے میننگ میں کوئی فرق نہیں ہے. قلبہ کا ترجمہ بھی اس کے دل ہے یا اس کا دل ہے، اور فی قلب ہی کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو فی کا ترجمہ تو میں ہے ہی ہے، اور اس کے دل یہ پہلے سے آ گیا. جی ایان بیٹے، کون سا پیج ہے؟ پیج نمبر آپ بتا پیج سکتے نمبر 9 ہے میرے بیٹے. یہ پہلے ہم نے کیا ہیں؟ ہوا ہے، اس کو آلریڈی اوکے، پڑھ چکے ہیں. تو میں آگے پیج میں ڈھونڈوں گا. اگلے سر میں آپ کے اگلے پیج ساتھ میں جو ہے نا وہ ڈھونڈوں کوئی چیز پیچھے لگی ہوئی ہے، ٹیلی ویژن وغیرہ، اور آپ کی آواز مجھے صحیح. گا. سر میری بینڈ بھی کریش ہو گئی. اوکے، فی رب ہی، یہ دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ ہم پیج نمبر 9 پہ ہیں، یہ پیج نمبر 9 ہے. تو فی رب ہی کا ترجمہ ہم کیا کرتے تھے؟ یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ جسٹ ایک ریویژن ہے جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں اور نیو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ خاص کر یہ چیز بتا رہا ہوں. اس کے رب میں، فی کا مطلب میں ہم پڑھتے ہیں پہلے. فی نفس ہی، فی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ میں. نفس ہی اس کی جان میں، نفس جان کو کہتے ہیں. فی نفس ہی اس کی جان میں، فی حکم ہی اس کے حکم میں. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. جو نیو کمرز ہیں کائنڈلی دھیان سے اور جلدی سے اس کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں. اولڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دھیان سے اس کو اپنی کریکشن ساتھ ساتھ کر لیں. فی اہل ہی اس کے گھر والوں میں. اس کا ترجمہ ہم نے اہل ہی کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اس کے گھر والوں، اور اس کے ساتھ اپنے بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں میں. قلب ہی کا ترجمہ اس کے دل میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے دل میں بھی کر سکتے ہیں. فی رب ہی کا ترجمہ بھی اپنے رب میں. فی نفس ہی کا ترجمہ بھی اپنی جان میں. فی حکم ہی کا ترجمہ بھی اپنے حکم میں. اس طریقے سے یہ اپنے کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. فی زینت ہی اس کی خوبصورتی. اس کی خوبصورتی میں. فی انوک ہی اس کی گردن. انک گردن کو کہتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کی آ گیا. اس کی گردن. فی کا ترجمہ کیا ہے؟ میں. اس کی گردن میں. فی حرس ہی، حرس کہتے ہیں کھیت کو، اس کے
खेत, और फी का तर्जुमा क्या है, में, उसके खेत में, उसके खेत में। क्लियर हो गया? यहाँ तक तमाम बच्चों को क्लियर है? कोई चीज पूछना चाह रहा है यहाँ पे? रियान नासिर, बेटे आप कुछ पूछना चाह रहे हो? नो सर। ओके, लो योर हैंड प्लीज। ओके नेक्स्ट, ये सब क्लियर हो गया हर एक के लिए? इसको मैं रेस कर दूं, न्यू कमर्स, इसको मैं रेस कर दूं बेटे। ये मी के साथ कौन है ऐड हुआ हुआ? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हु इज दिस मी? काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें और मुझे बताएं, नहीं तो मैं आपको वेटिंग रूम में भेज दूंगा। या अपना नेम सही करें। हेलो, ये जो मी के साथ बेटे आप अपने आप को, आपने लॉगिन किया हुआ है, इंटर किया हुआ है मीटिंग में, आप अपनी आईडी दुरुस्त कर लें, अपना नेम सही करें। बेटे अभी तक आपने नहीं सही किया। ओके थैंक यू। इस्माइल बेटे आप भी अपनी क्लास मेंशन करो आगे। मोहम्मद जुल्करनैन, सुबहान रजा, शाहबाज जुल्करनैन, क्लास मेंशन करें बेटे। इस्माइल क्लास मेंशन करो। बेटे एक टाइम ही कहा जाए तो आपको चाहिए कि उस पर अमल कर लिया जाए। बार बार टाइम वेस्ट करते हैं अपना भी, बाकी स्टूडेंट्स का भी। नेक्स्ट है आपका इला के साथ। इला का तर्जुमा आप लोग करते थे की तरफ। इला का तर्जुमा क्या करते हैं? ये जो लेटर है इसका तर्जुमा की तरफ है। इला का तर्जुमा की तरफ है। यहाँ देखें, इला कौम ही, उसकी कौम की तरफ। कौमुहू था, इला इससे पहले आया तो ये कौम ही हो गया। बाकी इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं आया। उसकी कौम, पहले भी उसकी कौम ही था और अब भी जब इला के साथ पढ़ा तो तब भी इसका तर्जुमा उसकी कौम ही रहा। उसकी कौम की तरफ, अपनी कौम की तरफ भी इसका तर्जुमा कर सकते हैं। इला अहले ही, अभी हमने इस लफ्ज को पढ़ा है। उसके घर वालों की तरफ, इला अब्दिही, उसके बंदे की तरफ, इला उम्मे ही, उसकी माँ या वालिदा की तरफ। ठीक है? इला ताआमी ही, उसके खाने की तरफ। ठीक है? इला समरे ही, ये उस दिन भी हमने बात की थी, उसके फल की तरफ। जिन्होंने इससे पहले अपने के साथ तर्जुमा किया हुआ है, अपने घर वालों की तरफ, अपने बंदे की तरफ, अपनी माँ की तरफ, अपने खाने की तरफ, अपने फल की तरफ, तो वो भी सही है। क्लियर होगी बात? यानी इसको दोनों तरह से आप लिख सकते हो, उसके घर या उस अपने घर, उसके बंदे या अपने बंदे, उसकी माँ या अपनी माँ, उसके गाने या अपने खाने। यानी अपने के साथ और उसके के साथ तर्जुमा हो सकता है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इमाद नवाज,
जी बेटे सर बोले। आप ये जूम आउट करेंगे सर? मैं जूम कर दूं? बेटे ये तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत बड़ा करके मैंने इसको किया हुआ है। इसके बाद ये मैं रेस कर दूं। हमाद बेटे कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं बोल रहा हूँ सर ये जूम आउट कर दें, जूम इन नहीं। ओके मतलब ओके ऊपर वाला हिस्सा सर मैंने स्क्रीनशॉट लेना। ओके ओके। फुल आपने पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेना है? जी सर। ओके, जस्ट अ मिनट। शुक्रिया। अब ठीक है? हमाद बेटे ठीक है? जी सर। सर ओके। मगर सर यहाँ पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं नजर आ रहा जो आपने लिखवाया है। अब मैंने तो वो क्लियर कर दिया ना बेटे, वो जब लिखता हो ना तो वो साथ साथ जो है वो जब पेज को रोटेट करते हैं, आगे पीछे करते हैं ना, तो वो चूंकि वो उसके साथ रोटेट नहीं होता है। जी सर क्लियर ओके। होगी? जी सर। अब हम नेक्स्ट जो है अगली चीज जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, वो बा है। यानी जब भी किसी नॉन से पहले बा ज़ेर बी आता है तो उस वक्त उसका तर्जुमा क्या करते हैं? उस वक्त उसका तर्जुमा को से कर सकते हैं, पर से कर सकते हैं, से कर सकते हैं, में से कर सकते हैं। ये आप सेंटेंस के एतबार से उसका तर्जुमा करेंगे, या तो पर करेंगे, या को करेंगे, या से करेंगे, या में करेंगे। क्लियर? ये सारे जो हरूफ अभी चल रहे हैं इनको हरूफ जारा बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा तो YouTube में मैंने जो नाम दिया हुआ है इसका, हरूफ जारा का इस्तेमाल, जो टाइटल दिया हुआ है ना, वो हरूफ जारा का इस्तेमाल का टाइटल दिया हो, तो ये हरूफ जारा कहलाते हैं। ये किसी भी नॉन पे दाखिल होते हैं तो उसको ज़ेर दे देते हैं। ये देख रहे हैं रसूल ही, रसूलु हु नहीं पढ़ा इसको, बिहम्द ही पढ़ा है, बिहम्दु हु नहीं पढ़ा। ठीक है? अब देखें, बेरसूल ही, उसके रसूल पर, या उसके रसूल को, या उसके रसूल से, या उसके रसूल में। ये को से में का तर्जुमा जो है ये उस वक्त चेंज होगा जब पीछे कोई सेंटेंस या इससे आगे भी कोई सेंटेंस पूरा कंप्लीट होगा, तो उस एतबार से इसका तर्जुमा को से में पर वगैरह होता चला जाएगा। अब यहाँ देखें, अगली बात है बिरहमती ही, उसके रहमत से, उसकी रहमत से। यहाँ पे से का माना जो है वो बड़ा सूट कर रहा है। बेनिअमत ही, उसकी नेमत से। बिन्नस्री ही, उसकी मदद से। बिहम्दिही, उसकी तारीफ के साथ भी इसका तर्जुमा होता है। क्लियर? बिअम्रिही, उसके हुक्म के साथ यहाँ पे तर्जुमा कर रहे हैं। उसके हुक्म से या उसके हुक्म के साथ। बिइज़्निही, उसकी इजाज़त, उसके इज़्न से, उसकी इजाज़त से। बिहुक्मिही, उसके इक़्तिदार से, उसके इक़्तिदार से। बियदिही, उसके हाथ से, यदुन हाथ को कहते हैं, उसके हाथ से।
यदुन क्या किसको कहते हैं? हाथ। पढ़ते हैं ना हम कुरान मजीद में, यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिज़वान ली थी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जब बैत ली गई थी, तो उस वक्त जब बैत ली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हाथ सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हाथों पे हाथ रखा, तो उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन सब के हाथों पर अल्लाह का हाथ है। यदुन किसको कहते हैं? हाथ को। बिअहदिही, बिअहदिही, उसके अहद, वादा, वादा भी लिख सकते हो इसको और ज़माना भी लिख सकते हो, दोनों तर्जुमे हो सकते हैं। उसके ज़माने से, ठीक है। जी हसान 6 से हसान, अनम्यूट करें अपने आप को बेटे। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बोलें बेटे। हसन। Yes. जी जी। Yes. Yes, sir. हाँ Yes, बेटे, sir. नहीं आवाज नहीं आ रही अब। Hello. जी जी। Sir. Yes, sir. बोले बेटे, क्या प्रॉब्लम है? Sir. पूछना है? नहीं सर, सर ये गलती से हैंड रेज हो गया था सर। ओके ओके ओके। बिस्सिहरिही, सिहर कहते हैं जादू को, और सिहर जागने को भी कहते हैं। उसके जादू से, बिअहलिही, उसके अहल अभी हमने पढ़ा है, उसके घर वालों, घर वालों से, बिमिस्लिही, उसकी मिसाल से, बिआयातिही, उसकी निशानियों से। आयात निशानियां और आयात, आयात भी लिख सकते हो। बियमीनिही, उसके दाएं हाथ, राइट हैंड, यमीन कहते हैं राइट हैंड, उसके दाएं हाथ से। बिशिमालिही, उसके बाएं हाथ से। ये ठीक हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा है बा के तर्जुमे के, यानी बा जब आता है बाज़र बी किसी भी नाउन के ऊपर, तो फिर किस तरीके से उसका तर्जुमा करते हैं। तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि जब भी ये हरफ आता है तो इसका तर्जुमा मोस्टली के साथ से होता है, और फिर सेंटेंस के एतबार से पर भी तर्जुमा कर लेते हैं, को भी तर्जुमा कर लेते हैं, और में तर्जुमा भी होता है। तो ये बा के लिए यहाँ तक आई थिंक सो हर एक के लिए क्लियर है। ये मैं रेस कर सकता हूँ अभी? किसी ने लिखना तो नहीं है? यू कैन रेस योर हैंड अगर किसी ने लिखना है तो। नहीं लिखना तो हम नेक्स्ट लेटर की तरफ, नेक्स्ट हरफ की तरफ जा रहे हैं। वो लामज़िर ली है। जी किसी ने भी नहीं लिखना? ओके। अभी हम पढ़ेंगे लामज़िर ली। जब भी नाउन से पहले ये लफ्ज़ आए लामज़िर ली, तो उस वक्त उसका तर्जुमा किस तरह से करेंगे। लामज़िर ली का तर्जुमा के लिए होता है। लामज़िर ली जब भी किसी कुरान के अंदर किसी हरफ से पहले लामज़िर ली आता है, तो उसका तर्जुमा क्या करते हैं? के लिए।
ٹھیک ہے، جس طرح یہاں پہ لے رب ہی، رب ہی پہلے ہمیں پتا ہے کہ اس کے رب، ابو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کا رب، اور یہاں پہ لی رب ہی آ گیا تو اس کے رب کے لیے، لے رسول ہی کا ترجمہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے رسول کے لیے۔ قوم ہی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس کی قوم کے لیے۔ صاحب ہی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھی یا دوست کے لیے۔ یہ کلیئر ہو گیا، اس کے قوم یا ساتھی کے لیے۔ لی ابی ہی کا ترجمہ ابن باپ کو کہتے ہیں، لی ابی ہی اس کے باپ یا اس کے والد، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، والد کے لیے۔ لی امی ہی اس کی والدہ کے لیے، والدہ لکھ سکتے ہو، ماں لکھ سکتے ہو، امی کے لکھ سکتے ہو، کچھ بھی لکھ سکتے ہو۔ اخی، اخن بولتے ہیں بھائی کو، لی اخی اس کے بھائی کے لیے۔ لی اختی، اختن بولتے ہیں بہن کو، اخن بولتے ہیں بھائی کو، اختن بولتے ہیں بہن کو، اس کی بہن کے لیے۔ ٹھیک ہے، ابن بولتے ہیں بیٹے کو، لی ابن ہی اس کے بیٹے کے لیے۔ لی امراتی ہی، امرا عورت کو بولتے ہیں، اس کی عورت کے لیے، اس کی بیوی کا بھی اس میں ترجمہ کر سکتے ہو، اس کی بیوی کے لیے۔ لی ولی ہی، ولی کہتے ہیں دوست کو، ہم بولتے ہیں نا ہم لوگ یہ تو ولی اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کا دوست ہے، ولی اللہ، ولی کا مطلب کیا ہے، دوست، اس کے دوست کے لیے۔ کلیئر ہو گیا میرے بیٹے؟ لنور ہی اس کی روشنی، نور روشنی کو کہتے ہیں، اس کی روشنی کے لیے۔ لے حکم ہی، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اس کے اقتدار یا اس کے فیصلے کے لیے۔ لفضل ہی اس کے فضل کے لیے۔ لنفس ہی اس کی جان کے لیے، ابھی پڑھا لفظ۔ لکلمات ہی، کلمات کس کو بولتے ہیں، فیصلے، اس کے فیصلوں کے لیے۔ کلیئر؟ یہاں تک لام زر لی کا ترجمہ تھا کہ جب بھی یہ کسی حرف سے، یہ کسی نون سے پہلے یہ لام زر لی جو حرف آتا ہے تو اس وقت قرآن مجید میں اگر یہ حرف اس طریقے سے آئے تو کس طریقے سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں آپ، وہ اس کا ترجمہ ہمیشہ لام زر لی کا کیا ترجمہ ہے، کے لیے۔ لی رسول ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لے قوم ہی اس کی قوم کے لیے، تو اس طریقے سے یہ اس کے سارے ترجمے ہوں گے۔ اوکے، یہاں تک کسی کو کوئی کیوری ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے، ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ بیٹے۔ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اوکے، یہاں لفظ انا ہے، انا کا ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے وہ ذرا دھیان سے سیکھ لیں ہم۔ انا اور انا جو لفظ ہوتے ہیں، الف کے نیچے زیر یا الف کے اوپر زبر
और नून ये मुशद्दद जब भी आता है तो उस वक्त इसका तर्जुमा किस तरीके से करेंगे? उसका तर्जुमा बेशक होगा। कुरान मजीद में दो लफ्ज़ बेशक का तर्जुमा दे रहे होते हैं, दो हरफ बेशक का तर्जुमा दे रहे होते हैं, इन्ना और अन्ना। बेशक का तर्जुमा इन्ना भी आए तब भी बेशक इसका तर्जुमा हो गया, अन्ना आए यानी अलिफ के ज़बर के साथ तो तब भी तर्जुमा इसका बेशक होगा। इन्ना रब्बहू, बेशक उसका रब। लेकिन फ़र्क ये है, पहले हम लाम ज़िर ली, बाज़िर भी, इला, फी, ये जो तर्जुमे किए हैं ये अपने बाद वाले आने वाले नाउन के नीचे ज़ेर देते हैं, लेकिन ये जो है ये अपने बाद में आने वाले लेटर के ऊपर ज़बर देता है। ये देखें आपने, ले रब्बे ही, बा के नीचे ज़ेर पड़ी है और हा के नीचे ज़ेर पड़ी है, और ये जो है इन्ना, ये ज़बर दे रहा है अपने बाद वाले नाउन को। ये चूंकि ज़मीर है, प्रोनाउन है, इसके ऊपर इसका असर नहीं हुआ, बल्कि ये जो नाउन है इसके ऊपर इसका असर हुआ कि जब आप इन्ना आया तो इसने इसको कहा कि यहाँ ज़बर पड़ी जाएगी। ये ज़हन में रखें कि इन्ना और अन्ना ये दोनों लफ्ज़ जब आते हैं तो बाद वाला जो नाउन होता है उसको ज़बर के साथ पढ़ा जाता है। इन्ना रब्बा, 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 बा ज़बर बा पड़ा है। इन्ना रब्बाहू, इन्ना फदलाहू, फदला, लाम के ऊपर ज़बर पड़ी है। अखज़ा ज़बर पड़ी है, मफातिहा ज़बर पड़ी है। क्लियर? यहाँ पे इन्ना फज़लहू, बेशक उसका फजल। इन्ना अखज़हू, बेशक उसकी पकड़। इन्ना मफातिहहू, बेशक उसकी कुंजियाँ, उसकी कुंजियाँ या उसकी चाबियाँ। ठीक है, तो यहाँ तक हर एक के लिए ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने इसका तर्जुमा बेशक के साथ किया है। अब यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इसको यहाँ ही रोक रहा हूँ। अभी एक लिंक आपको मैं सेंड कर देता हूँ अपनी यूट्यूब का, वहाँ से भी ये जिस तरह हमने अभी यहाँ पे पढ़ा है सेम वही लेक्चर वहाँ पे मैं अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। उसमें कोई किसी किस्म की कोई क्यूरी होगी तो आप वहाँ से उसको आराम से देख सकते हो।